اپنی سرکشا کے لیے ہماری مدد کیجیے۔ ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے کی نظر آج کی سرخیوں پر۔ سوپور میں سی آر پی ایف پارٹی پر ملیٹنٹ حملہ، ایک سی آر پی ایف اہلکار اور ایک عام شہری ہلاک۔ راجوری کے کیری سیکٹر میں دراندازی کی کوشش ناکام، ایک درانداز ہلاک۔ بھارت اور چین کی فوج نے مشرقی لداخ میں تناؤ کم کرنے کی ضرورت کی اجاگر، 12 گھنٹوں تک چلی کور کمانڈر سطح کی میٹنگ۔ اور وادی میں کورونا کی وجہ سے 2 مزید افراد کی موت، یوٹی میں مرنے والوں کی تعداد ہو گئی 104۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بارہمولہ کے سوپور قصبے میں آج ایک ملیٹنٹ حملے کے نتیجے میں ایک سی آر پی ایف جوان اور ایک عام شہری جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ملیٹنٹوں نے سی آر پی ایف کی ایک ناکہ پارٹی پر دھاوا بول کر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں سرکاری ذرائع کے مطابق سی آر پی ایف کے ایک اہلکار کی ہلاکت ہوئی اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ کراس فائرنگ میں بشیر احمد خان نامی ایک 65 سالہ شخص کی بھی موت واقع ہو گئی۔ مہلوک سی آر پی ایف اہلکار کا نام کانسٹیبل دیپ چندر ورما بتایا گیا ہے۔ اس واقعے کی نسبت آئی جی پی کشمیر وجے کمار نے ایک پریس کانفرنس میں میڈیا کو جانکاری دی۔ دہلی کی طرح جب سی آر پی جا رہی تھی وہاں پر ناکہ لگانے کے لیے ماڈل ٹاؤن شوپور میں، اور جو جوائنٹ ناکہ ڈیلی ہوتا ہے پولیس اور سی آر پی ایف کا، تو جس ٹائم میں سی آر پی ایف کے جوان گاڑی سے ڈیبورڈ کر رہا تھا، اسی ٹائم مسجد کے اندر سے اندھا دھند فائرنگ آنا شروع ہو گیا، جس میں سی آر پی ایف کے ایک جوان شہید ہو گئے، 3 زخمی ہو گئے۔ وہاں سے کار میں 65 ایئر اولڈ ایک بشیر صاحب جا رہے تھے، اس کے گاڑی میں ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ پینکلی گاڑی سے نکل کے بچہ کو لے کے بھاگنا چاہا، ان کو بھی گولی لگ گیا، اس میں ان کی جان گئی ہے۔ لوگوں نے غلط پھیلایا، خاص کر مسکرینٹ لوگ ہیں، اور مسکرینٹ کے ڈر سے، ملیٹنٹ کے ڈر سے اس کا بیٹا بھی ایک ویڈیو جاری کیا جو سراسر غلط ہے۔ انفیکٹ کہ میں پولیس کا ایس ایچ او کا بہت میں اس کو انکریج کروں گا، یا میں یہ آپ لوگ بتانا چاہوں گا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اپنی جان کو ہتھیلی میں ڈال کے فائرنگ کے بیچ میں جا کے بچوں کو وہاں سے ریسکیو کیا۔ اس دوران مہلوک عام شہری کی میت جب ایچ ایم ٹی سری نگر میں ان کے گھر پہنچائی گئی تو اس علاقے میں صف ماتم بچھ گئی۔ مہلوک کے اہل خانہ نے انہیں جان بوجھ کر نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے۔ ایس پی سوپور جاوید اقبال کے مطابق بشیر احمد خان نے فائرنگ ہوتے ہی پہلے اپنے پوتے کو بچایا، لیکن خود گولیوں کی زد میں آ جانے سے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ نیشنل کانفرنس نے سوپور انکاؤنٹر میں ایک عام شہری کی ہلاکت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے اصل حقائق عوام کے سامنے لانے کے لیے کہا ہے۔ ایک بیان میں پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ عام شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنائے جانے کے وحشیانہ اور سفاکانہ واقعات ہر حال میں ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہیں۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ بیٹنگ تو ارجن کر رہا ہے، تو سب گولو کے لیے کیوں چیئر کر رہے ہیں؟ وہ تو گھر پر بیٹھا ہے۔ ارے تمہیں نہیں پتا، وہ اس لیے نہیں آیا تاکہ ہمیں انفیکشن نہ ہو۔ نوول کورونا وائرس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ بخار کے ساتھ کھانسی اور چھینک ہونے پر ساروجنک جگہوں سے دور رہ کر اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اپنی سرکشا کے لیے ہماری مدد کریں۔ اگر آپ کو کھانسی، بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو ترنت نزدیکی سواستھ کیندر جائیں یا ہیلپ لائن نمبر 911123978046 پر سمپرک کریں۔ دیدی یہ دیکھو۔ نوول کورونا وائرس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ کھانسی اور چھینک کے بعد اور بچے کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو کر اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اپنی سرکشا کے لیے ہماری مدد کریں۔ اگر آپ کو کھانسی، بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو ترنت نزدیکی سواستھ کیندر جائیں یا ہیلپ لائن نمبر 911123978046 پر سمپرک کریں۔ پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین نے سوپور میں شہری ہلاکت کے واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے متاثرہ کنبے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ چھان بین کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے مصطفیٰ کالونی ایچ ایم ٹی کے رہنے والے عام شہری بشیر احمد خان کی ہلاکت کے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
उधर त्राल में भी गुज़श्ता शाम फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प हुई। ज़राए के मुताबिक तसादुम की जगह पर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी का एहतमाल था, ताहम झड़प के अख्तिताम पर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। उधर फौज ने राजौरी जिले में हद मुतारका पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया है। दिफाई ज़रा के मुताबिक ये वाक़या तकरीबन सुबह 6 बजे पेश आया, जब राजौरी के केरी सेक्टर में उस पार दरअंदाजी कर चुके एक गिरोह को ललकारा गया, जिसके नतीजे में तरफेन के माबेन झड़प हो गई। एक फौजी ऑफिसर के मुताबिक तसादुम आराई के नतीजे में एक मिलिटेंट मारा गया, जिसके कब्जे से एक AK-47 राइफल और 2 मैगजीन बरामद किए गए। फौजी ज़राए के मुताबिक दरअंदाजों के दीगर अरकान को तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन हुनूज जारी है। जिला अदालत कुलगाम ने 2011 के फायरिंग के एक वाक़े में मुजरिम संजय कुमार राय के खिलाफ 9 साल के मुकदमे के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है। वाज़ेह है कि वाक़या 24 दिसंबर 2011 को उस वक्त पेश आया जब CRPF की 18वीं बटालियन कैंप में मुजरिम ने किसी बात पर अपने ही साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 3 एहलकारों की मौत हो गई थी। मुजरिम संजय कुमार के खिलाफ ये फैसला जिले के प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद अशरफ ने सुनाया। भारत और चीन की फौजियों ने दोनों मुल्कों के माबेन हकीकी कंट्रोल लाइन पर तनातनी और कशीदगी को कदम ब कदम कम करने की जरूरत उजागर की है। मशरकी लद्दाख में तकरीबन 7 हफ्तों की मखासमत आराई के तनाजुर में दोनों मुल्कों के फौजियों के बीच 12 घंटों तक कोर कमांडर सतह की आज एक और मीटिंग हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों अतराफ से LAC पर तनाव कम करने की जरूरत उजागर की गई और आने वाले दिनों में फौजी और सफारती सतहों की कुछ और मीटिंगें होने की तवक्को है। ये मीटिंग लद्दाख के चशूल सेक्टर में हुई। दरियास्ता मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि बाहर शहरों के प्रोजेक्टों में चीनी कंपनियों की शमूलियत की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने यहां तक कहा कि छोटी और औसत दर्जे की कारखानादारी में अब चीनी सरमायाकारों की शमूलियत को भी यकीनी न बनाने की पहल की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत अपने डॉक्टरों को सलाम पेश करता है जो कोविड-19 के खिलाफ पुरजोर मुहिम में पेश रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टरों के दिन के मौके पर एक ट्वीट में कहा कि बहरान की इस घड़ी में हर शख्स का ये फर्ज है कि वो हर लम्हे डॉक्टरों का एहतराम करे और उनकी इज्जत अफजाई करे जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इधर वादी में महकमे सेहत और कुछ बड़े अस्पतालों के मुंतजमीन की जानिब से भी डॉक्टर्स डे की मुनासिबत से तकरीबात और प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इन प्रोग्रामों में मरीजों की तिब्बी निगहदाश्त खासतौर से मौजूदा वबाई सूरत-ए-हाल के दौरान मुआलिजीन की खिदमात और रोल को सराहा गया। डॉक्टर्स डे के मौके पर स्किम्स के डायरेक्टर डॉक्टर AG अहगर ने एक तकरीब पर डॉक्टरों के पेशे की अहमियत उजागर की और उन्होंने डॉक्टरों से तलकीन की कि वो खिदमत खल्क जज्बे के तहत बीमारों के इलाज और मुआलजे में अपनी खिदमात वक्फ रखें और डॉक्टरी पेशे को बिजनेस न बनाएं। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से भी चीफ जस्टिस गीता मित्तल की सरबराही में डॉक्टर्स डे की मुनासिबत से एक ऑनलाइन टॉक शो मुनाकिद किया गया, जिस दौरान तिब्बी निगहदाश्त की खिदमात को यकीनी बनाने में अपना सब कुछ दाव पर लगाने वाले डॉक्टरों को शानदार अल्फाज में सलाम और स्पास अदा किया गया। लॉकडाउन खोलने के दूसरे मरहले के लिए नए रहनुमा खतूत आज नाफिज हो गए हैं। इनके तहत घेराबंदी वाले इलाकों के बाहर मजीद सरगर्मियों की इजाजत दी गई है। घेराबंदी वाले इलाकों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन सख्ती के साथ नाफिज किया जाएगा। इन इलाकों में सिर्फ लाजमी सरगर्मियों की इजाजत होगी। लॉकडाउन खोलने के दूसरे मरहले के नए रहनुमा खतूत के तहत मेट्रो रेल खिदमात, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, तफरीही पार्क, थिएटर, कॉन्फ्रेंस हॉल और इसी तरह के मकामात बंद रहेंगे। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से मुतासर 3,47,979 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,157 अफराद सेहतियाब हुए। इस तरह कोरोना वायरस मरीजों के सेहतियाब होने की शरह 59.43% तक पहुंच गई है। तहाँ वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 18,653 नए मामलात सामने आए। इस तरह अब तक 5,85,000 अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 17,400 तक पहुंच गई है। इधर वादी में आज कोरोना वायरस की वजह से 2 मजीद अफराद की मौत के साथ ही कोविड-19 की वजह से जम्मू कश्मीर में मरने वालों की तादाद 104 हो गई है। आज हुई अमवात में सोपोर का एक 75 साल शख्स और बीजबिहाड़ा का एक 80 साल शख्स शामिल हैं। दोनों अफराद निमोनिया के अलावा छाती के कुछ दीगर अमराज में भी मुब्तला थे। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हुई अब तक की 104 अमवात में से 92 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन और 12 का जम्मू डिवीजन से है। गौरतलब है कि कोरोना से मुतासर मामलात में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और वायरस से मुतासरीन की कुल तादाद इस वक्त 7,500 के पार चल रही है। खुशआइंद बात यह है कि अब तक 4722 मरीज सेहतियाब भी हो गए हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नए अकामती कानून यहाँ के पुश्तनी बाशिंदों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के एक नए दौर का आगाज है जो यहाँ के मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौकों का भी गला घोंट देगा। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी एन इतू ने आज नाज़िम सियाहत कश्मीर के हमरा जिले के मुख्तलिफ पार्कों का दौरा करके वहां जारी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने खादिनियार बारामूला में दरियाए जहलम के किनारे वाक़े इको पार्क का दौरा करके वहां जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने वहां चिल्ड्रन पार्क के क़याम के लिए मुतल्लिक़ अफसरान के साथ मुख्तलिफ खद्दोखाल पर तबादला ख्याल किया। डीसी ने कहा कि जिले में सियाहत के फ़रोग़ के लिए इंतजामिया की तरफ से मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिक़ इंजीनियर पर जोर दिया कि वो कोविड-19 के रहनुमा खतूत को अपनाते हुए जारी प्रोजेक्टों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें। जिला मजिस्ट्रेट बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने आज जिले की मजहबी शख्सियात, आइमा हजरात और मुफ्तियानी किराम के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान उन रहनुमाओं से जिले के अवाम में कोरोना वबा की निस्बत जानकारी फैलाने की इस्तदा की गई। उन्होंने कहा कि मजहबी शख्सियात के कहने पर अवाम वज़ाशुदा प्रोटोकॉल्स पर अमल पैरा रहने में किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से आज कुपवाड़ा में तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें जिस्मानी तौर खास अफराद में स्कूटियां तकसीम की गईं। तकरीब में मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा और बहुत जल्द ऐसे अफराद के लिए एक खुसूसी स्कूल भी कायम किया जाएगा। इंजीनियर इफ्तिखार अहमद वानी ने महकमे पीएचई कश्मीर के नए चीफ इंजीनियर की हैसियत से आज अपना ओहदा संभाल लिया। मौजूदा चीफ इंजीनियर अब्दुल वाहिद कल अपने ओहदे से सुबकदोश हुए थे जिसके बाद आज नए चीफ इंजीनियर ने यह ओहदा रस्मी तौर पर संभाल लिया। महकमे ज़राअत ने वादी के तमाम किसानों से कहा कि किसान क्रेडिट स्कीम से जुड़ने के लिए अपना इंदराज कराएं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने कहा कि स्कीम के साथ जुड़ना हर किसान के लिए लाजमी है। दावर गुरेज में आज एक निजी ट्रस्ट की तरफ से 3 रोजा तिबी कैंप का एहतमाम किया गया जिसका इफ्तिताह दिही तरक्की महकमे के डायरेक्टर काजी सरवर ने किया जो तकरीब पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से भी मौजूद थे। कैंप में मौजूद सीनियर डॉक्टरों ने मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मरीजों का इलाज किया जिनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गईं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मास्टर प्लान डिवीजन श्रीनगर इतला देते हैं कि महकमे को सुखनाग वाटर सप्लाई स्कीम की सप्लाई की मेन लाइन की जरूरी मरम्मत करना मतलूब है जिसके पेश नज़र 2 जुलाई यानी कल जुमेरात को सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक नसरुल्लाहपुरा, सबदन, खुमैनी चौक, रखे अर्थ, हमदानिया कॉलोनी, दुर्बल, जैनाकोट, गुंडहसी बट, महाराजपुरा, टेंगपोरा, आलोची बाग, हैदरपुरा, दंदूसा और चंद दीगर मुल्का इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासर रहेगी। पानी की अशद जरूरत पड़ने पर टेलीफोन नंबर 2477-207 और 245-2047 पर राबिता कायम किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान ने 2008 के एक मुआहिदे के मुताबिक आज एक दूसरे के यहाँ मुक़ैद शहरियों और माहीगीरों की फहरिस्तें एक दूसरे को सौंप दी। वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक भारत की तरफ से पाकिस्तान को सौंपी गई फहरिस्त में 285 शहरियों और 97 माहीगीरों के नाम दर्ज किए गए हैं। फौज की तरफ से टंगमर्ग इलाके में कोविड-19 के जवाबित पर पासदारी यकीनी बनाते हुए एक मेगा खेल मेला मुनाकिद किया गया। इस फेस्टिवल के तहत इलाके के मुख्तलिफ खेल के मैदानों में अलग अलग दिनों पर स्पोर्ट्स इवेंट मुनाकिद किए जाएंगे। फेस्टिवल के तहत आज कुंजर ग्राउंड में 3000 मीटर और 1500 मीटर के दौड़ का एहतमाम किया गया था जबकि कल के लिए होकरसर नंबल में किश्तियों की एक दौड़ होगी। इस बीच फौज की किलो फोर्स की जानिब से एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनाकिद किया गया। फाइनल मैच हाजीबाग वॉरियर्स और वारपोरा एफसीसी के माबैन खेला गया। फातिह टीम हाजीबाग वॉरियर को 10,000 रुपए के नकद इनाम से नवाजा गया। मकामी नौजवानों ने फौज की इस कोशिश की सराहना की जो नौजवानों को मसरूफ रखने का एक बेहतरीन मशगला है। मौसम महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।